Namaskaram and a very good evening, all of you. How are you guys doing? I hope you're having a fantastic day and you're enjoying the winters creeping in very quietly. We are here with episode 2 of Eclectic Reading. My name is Karishma and I'm your VARC educator at Unacademy. Could you please quickly confirm if I'm audible and visible? And then we'll begin. Are we live yet? Yeah, I think we are. Alright, so let's begin for the day. We did an article, a simple article, day before yesterday. Today we are doing episode 2. Today's article is slightly up in the difficulty level as compared to the previous one. Alright, so, but yeah, that's how we'll grow. It's also an article which is about something that you might have never thought of in so much of depth. So we today are going to talk about something, probably we keep using this word all the time. So today we are going to define and understand stupidity from the author's point of view. So it's been written in a very philosophical, psychological tone, and there might be few words here and there that you might not understand, but that's where I come to your rescue. And I'll help you sail through the article very quickly, and I also hope that you will enjoy it. Before I begin with the article, if you want to prepare your CAT journey, you want to prepare your VARC with me and you want to travel this CAT journey with me, then you can reach out to me on my Telegram channel. This is the discount code that you could be using throughout the Unacademy platform, CAT or non-CAT, for getting discounts. And of course, you can check my profile details, free classes, paid classes, etc. on my profile. So my username is Karishma2510. You will also find the link to my profile in the description box below. Let's begin. So stupidity was not mere dumbness. Also, before I begin, just to clarify, wherever you see these 3 ellipses, which means 3 dots, it means I have cut short the article from there. Okay, and whenever you see things written in brackets like this, it means this was required to be inserted to make the sentence grammatically correct, because I have cut it short. This is exactly the same how CAT gives you articles. CAT will cut short a huge article or take an excerpt from a book. So wherever they cut short the article, they'll give you 3 dots. Also, wherever corrections are needed, because now you've made changes and therefore the sentence needs to be modified, they will put things in brackets. Do not be confused about it. Just ignore this punctuation and keep reading. So let's begin. Stupidity was not mere dumbness. So did you think that the word stupid and the word dumb means the same? Do you often at least call out on your sibling, too dumb hai, too stupid hai, too idiot hai, imbecile hai, and so on and so forth? The author is saying no. Stupidity and dumbness are different. Okay, so today you can decide by the end of the article कि अगले बार से भाई बहन को क्या बोलना है. Not a brute lack of processing power. Now brute, there is one word brutal. So brute also means savage. Okay, brutal का synonym है. Another meaning that brute has is something which is absolutely devoid of any reasoning. कोई सेंस नहीं है जिस बात में, बिल्कुल नॉनसेंस. जेठालाल टोन, नॉनसेंस. Okay, so no reason, no logic. Brute. सो ब्रूट लैक ऑफ प्रोसेसिंग पावर. तो स्टूपिडिटी ऑथर के हिसाब से डमनेस नहीं है, बल्कि वो एक बिना किसी रीज़न के आप में प्रोसेसिंग पावर ही नहीं है. तो बिल्कुल इलॉजिकल कमी है ये, कि प्रोसेसिंग पावर नहीं है, कमी है, और कमी कैसी है, इलॉजिकल. डमनेस वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई बुद्धू है तो है डमनेस. स्टूपिडिटी वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड मच मोर डेंजरस. तो डमनेस उतना हार्मफुल नहीं है. स्टूपिडिटी को ऑथर डेंजरस बोल रहा है. Dangerous precisely because some of the smartest people, the least dumb, were often the most stupid. Now this line is very beautifully written and this is explained in the paragraph further. दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग, जो कि सबसे लीस्ट डम्ब हैं, जो आपको सो कॉल्ड बहुत इंटेलिजेंट लगते होंगे, लीडर्स रहे होंगे कहीं हिस्ट्री में, उन्होंने सबसे स्टूपिड हरकतें करी हैं. तो फिर व्हाट एग्जैक्टली इज स्टूपिडिटी and how does it relate to morality? Morality is the sense of right and wrong, your ethical being, your ethics. Can you be morally good and stupid? So if you're an ethical person and you're very morally righteous, can you be stupid? For example, how does it relate to vice? What is vice? Virtue का opposite is vice. Vice is बुरा. Okay, virtue is अच्छा. Is stupidity a kind of prejudice perhaps? So prejudice is something that you have a notion in your brain beforehand. So it could be a prejudice, for example, that women cannot go out and make money, for example, or women should not be too outspoken, for example. This is a prejudice. Okay, or men cannot cry. This is a prejudice. तो stupidity भी ऐसा ही कोई पूर्वाग्रह है क्या, पूर्व की धारणा है क्या? Is it a preconceived notion? Don't worry about Hindi, I'm translating it for you.
And why is it so domain specific? So stupidity is not general. Author is saying stupidity is domain specific. It sticks to one particular domain. There are people who are stupid in one area but insightful in another. Well, the day after tomorrow is CAT, so you might be feeling that you are great at QA maybe, but not so great at VARC. It's the same here. People who can be stupid in one area can be great, very understanding and insightful in another. Which means stupidity is domain specific. Stupidity is a very specific cognitive failing. Cognitive, I have taught you the root word COGN. कहाँ है 22 वाले बच्चे? जल्दी बताओ. What is COGN? Cogn means? So cognitive failing will be failing in terms of knowledge. Alright? Crudely put, it occurs when you don't have the right conceptual tools for the job. So crudely put मतलब in a very raw form. Crude is raw. बहुत ही बिना पॉलिश किया हुआ, बिना रिफाइन किया हुआ, बहुत ही बेसिक स्टेट में, ओके, फंडामेंटल स्टेट में. सो क्रूडली पुट, इट अकर्स व्हेन यू डोंट हैव द राइट कंसेप्चुअल टूल्स फॉर द जॉब. द रिजल्ट इज एन इनएबिलिटी. यू करेक्ट. Cogn means knowing. Very good. The result is an inability to make sense of what is happening and a resulting tendency to force phenomena into crude, distorting pigeonholes. अभी इसको समझ लेते हैं. Stupidity cognitive failing है. You are knowing and then you're failing in the area of knowing. Okay, so cognitive failing. If you put it in raw terms, it will occur when you don't have the right concepts or the conceptual tools for doing something. आपको conceptual tool नहीं आता, आपको पैराजम्बल करने का conceptual tool नहीं आता, तो आप कुछ भी आंसर मार्क करोगे. This could be an example of stupidity according to what the author is saying. तो result क्या है? You are unable to make sense of what is happening. And when you are unable to make sense of what is happening, what is the resulting tendency? That you will force whatever is happening, the phenomena, into crude, which means raw, distorting, which means broken or disturbed, pigeonholes, which means fragments. तो बहुत ही टूटा फूटा, कैसा भी गंदा सुंदा distorted काम आप प्रोड्यूस करेंगे. This is easiest to introduce with a tragic case. अभी आ रहा है उदाहरण. So what is the tragic case that the author is giving you? British High Command during the First World War frequently understood trench warfare using concepts and strategies from the cavalry battles of their youth. First World War में ब्रिटिश हाई कमांड के सोल्जर्स ने ट्रेंच वॉरफेयर कैसे पढ़ा. व्हाट इज अ ट्रेंच? इट्स अ लॉन्ग नैरो डिच, ओके, वेयर द सोल्जर्स हाइड and the opposite side का soldiers will also dig their trench and they will hide there, and then we will peep and then we'll fire and then we'll peep and then we'll fire. You've seen this in movies. ट्रेंच वॉरफेयर की तैयारी कैसे करिए, कैसे अंडरस्टैंडिंग करिए, कौन से कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज लगाएं? कैवलरी बैटल के लगाएं. कैवलरी बैटल इज द बैटल्स दैट आर फॉट ऑन हॉर्स बैक. तो पुराने ज़माने में घोड़ों के ऊपर बैठ के लड़ाई होती थी ना, हॉर्स बैक बैटल्स होती थी. यू आर यूजिंग हॉर्स बैक बैटल्स इन ट्रेंच वॉरफेयर. विल दैट वर्क? It's like using 12th standard and college ka logic in CAT. It will not work. So what will happen? You're using concepts and strategies from something else. एक फील्ड मार्शल का एग्जाम्पल दिया है, या आगे भी यूज़ होगा. फील्ड मार्शल डूगलस हेग, रिमेंबर दिस वर्ड, whose subordinates मतलब juniors later remarked that they thought of the trenches as mobile operations at the halt. कि भाई इसके जूनियर्स ने, मार्शल के जूनियर्स ने एक्सेप्ट करी ये बात कि ये लोग सोचते थे कि ट्रेंचेस से काम करना मतलब कोई मोबाइल ऑपरेशन है जो रुका हुआ है. मोबाइल मतलब आप चल सकते हैं, क्योंकि हॉर्स बैक की आदत थी, तो हॉर्सेस तो चलते भागते रहते, लड़ाई होती है, खड़ा थोड़ी रहेगा हॉर्स. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेंच वॉरफेयर देख रहे हैं. यू सी द मिसमैच दैट्स हैपनिंग. तो फिर क्या हुआ? एज फ्लूइड बैटल लाइन्स, तो बैटल लाइन्स हैं लेकिन फ्लूइड हैं क्योंकि घूम सकती है, with the simple warning that nothing in fact budged for years. Caveat is a warning. Okay? Whatever new words you come across, keep writing. Caveat is a warning that in fact nothing in fact budged for years. कहते हैं ना, you just don't budge. Budge is move, shift. Okay? Shake. Move and shifting are the best synonyms. तो इनको लगता था कि अरे कुछ नहीं होगा, nothing will happen, everything will stay in place. Trench warfare is nothing. It's just a mobile operation. Nothing great about it. Unsurprisingly, there is no surprise here. This did not serve them well. Obviously, उनका हालत ख़राब हो गई बैटल में. It did not serve them well because they were using the wrong strategies in formulating a strategy. They were hampered, which means obstructed, hindered, beyond the shortage of material resources. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि material resources कम पड़ गए, बल्कि क्या प्रॉब्लम थी असली?
conceptual obsolescence. This is also used ahead in the passage, so you have to be careful. Conceptual means related to concepts and obsolescence is obsolete यानी antiquated यानी पुराना यानी old fashioned. Okay. A failure to update their cognitive tools to fit the task in hand. तो क्या है conceptual obsolescence? आप जो strategy लगा रहे हो वो obsolete है. आप कैवलरी की स्ट्रैटेजी लगा रहे हो ट्रेंच वॉरफेयर के ज़माने में भी, न्यूक्लियर वॉरफेयर के ज़माने में आप ट्रेंच वॉरफेयर भी नहीं चला सकते. It's a failure that you did not update your tools and you did not have the tools which will fit the task that you want to do right now. Stupidity will often arise in cases like this when an outdated conceptual framework is forced into service, mangling the user's grip on some new phenomenon. आप नए खराब जगह पर उलझ कर रह गए हैं. It is important to distinguish this from error. अभी आप इसको error मत बोलिए कि गलती हो गई साहब. No. तो author is saying ये सिर्फ merely error नहीं है. You should be able to distinguish stupidity from error. We make mistakes for all kinds of reasons. Okay, to err is human, to forgive divine. Stupidity is rather one specific and stubborn cause of error. Author कहता है भैया गलती करते हैं हम सब और हमारे अलग अलग कारण है गलती करने के, लेकिन stupidity बड़ा specific और ज़िद्दी कारण है एरर करने का. Basically the author is saying that you are greatly responsible for what you do if you are stupid. Historically, philosophers have worried a great deal about the illogicality, irrationality, lack of reason of not taking the available means to my goals. Let's understand this line. हिस्ट्री में फिलोसोफर्स ने बहुत चिंता करी है इस बारे में कि irrationality of not taking the available means to my goals. आपका गोल है कैट क्रैक करना, आपके पास वर्ड पावर मेड ईजी है, आपके पास क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, प्लस क्लासेस है, टीचर है, सब कुछ है, लेकिन आप यूज़ नहीं करते. आप क्लास नहीं आते, आप बुक नहीं पढ़ते, आप टीचर का सुनते नहीं, आप मीन्स यूज़ नहीं कर रहे हो गोल्स तक पहुंचने के लिए, तो ऑब्वियसली आप इर्रेशनल हो. फिर आप अपना गोल पे कैसे पहुँचिएगा. एग्जाम्पल, टॉम वॉन्ट्स टू गेट फिट. अभी दिवाली पे वज़न बढ़ गया, वज़न घटाना है, लेकिन भैया जूते तो धूल ही खा रहे हैं. रनिंग शूज़ आर क्वाइटली कैरिंग डस्ट. द स्टॉक सोल्यूशन इज मतलब जो तुरंत यूज़ होता है, कॉमनली यूज कह सकते हैं, दैट्स अ स्टॉक सोल्यूशन. तो स्टॉक सोल्यूशन क्या है टॉम की क्वांडरी का? क्वांडरी इज डिलेमा, पढ़ा चुकी हूँ. विल पावर की कमी है, जैसे कैट वालों में मोटिवेशन की कमी है, तो टॉम में विल पावर की कमी है, तभी वज़न नहीं कम हो रहा. स्टूपिडिटी विल पावर की कमी नहीं है, स्टूपिडिटी अलग है, स्टूपिडिटी इज़ डिफरेंट. इट इज़ रादर अ लैक ऑफ द नेसेसरी मीन्स, अ लैक ऑफ द नेसेसरी इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट. ना तो आपके पास जरिया है या फिर आपके पास इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट नहीं. आप सोच ही नहीं सकते कि अच्छा किताब पढ़ेंगे तो रीडिंग होगी तो सेशन करेंगे, सेशन से हमारा आरसी इंप्रूव होगा और आरसी से अल्टीमेटली स्कोर आएगा और स्कोर से अल्टीमेटली फिर हम कैट क्रैक कर सकते हैं. अगर आप ये सोच नहीं डेवलप कर पा रहे, इफ़ यू लैक दैट इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट, ना दैट इज स्टूपिडिटी. कॉम्बैटिंग इट, इफ यू वांट टू फाइट इट, इफ यू वांट टू कॉम्बैट इट, इट विल टिपिकली रिक्वायर नॉट ब्रूट विल पावर. अभी सिर्फ ब्रूट विल पावर से रॉ हाँ मैं तो कर दिखाएगा से नहीं होएगा कुछ, बल्कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वे ऑफ सीइंग आवर सेल्फ एंड द वर्ल्ड. बल्कि आपको आपका नज़रिया बदलना होगा. नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे. In at least some cases, intelligence actively abets stupidity. Beautifully written again, but slightly complicated. Understand this sentence. Intelligence actively abets stupidity by allowing pernicious rationalization. I'll break this down for you. What is abets? Abet is when you encourage someone in wrongdoing. गलत काम करने में किसी का साथ देना. For example, you are committing a murder and I will sharpen your knife for you. I'll tell you which knife is the best to slit a throat. This is abetting in a crime. Intelligence stupidity के crime में actively मदद करता है. मतलब stupidity का काम करते वक्त intelligence अगर है तो और ज़्यादा stupid बनाएगा आपको. This is very interesting. कैसे? Pernicious rationalization से. Pernicious is harmful. Rationalization समझ लेते हैं. I'll give you an example here. When I was a child and my grandfather used to smoke, I always thought that my grandfather is an illiterate refugee. He knows nothing about lungs and lung cancer. And maybe he's not interested in reading. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, and this is why he smokes. But my classmates who are going to a good school and will tomorrow enter good high paying jobs will never ever drink and smoke. Do you think that's the truth? My friends are into drinking and smoking more than my grandfather was. And when they are doing it and harming themselves or their body, obviously I'm not judging anybody here, I'm just giving you an example.
दे ऑल्सो हैव लॉजिक फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल 30 ml से कुछ नहीं होता, अरे आज तो दिवाली है, अरे सैटरडे संडे से कुछ नहीं होता, अरे रोज़ थोड़ा थोड़ा पीने से, अरे लाइफ में इतना स्ट्रेस है कैसे नहीं, अरे पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, अरे आजकल तो लड़कियां भी पीती है, भाई नहीं पीते तो मैं नाउ वॉट यू आर डूइंग इज यू आर रैशनलाइजिंग इट, यू आर एडिंग लॉजिक एंड रीजन टू योर धूम्रपान एंड मद्यपान एंड प्रॉबेबली चाय पान. दिस इज हार्मफुल. आपका इंटेलिजेंस आपकी हरकतों में आपका पूरा पूरा सहयोग दे रहा है. दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग. तो ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग स्टूपिड नहीं हो सकते हैं. आपके सामने मैंने अभी एक उदाहरण पेश कर दिया है. While I have introduced it via conceptual obsolescence, ऑथर कहते हैं मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दिया conceptual obsolescence का. Stupidity is also compatible with a kind of misguided innovation. उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं misguided innovation का. एक कंट्री है जो कि एक्साइटमेंट में इम्पोर्ट करती है नए नए कॉन्सेप्ट्स. कहाँ से? अपने पास्ट से नहीं कि मेरे लिए ये काम करता था तो चलो शायद अभी भी काम कर लेगा, बल्कि एक बिल्कुल डिफरेंट जगह से. फॉर एग्जाम्पल, India cannot import concepts from, let's say, the US, because the US and India are very different. Their concepts may not work here. Similarly, we cannot import concepts from, example, let's say Saudi Arabia, because that's a very different country and we are a very different country. China's one-child policy will not work for India. China's three-child policy is also not going to work for India. Global debate है social justice पे, मान लेते हैं. ये सारे के सारे आइडियाज़ और टर्म्स कहाँ से आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स से. अभी यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ नेशन जिसका अपना स्पेसिफिक हिस्टोरिकल और कल्चरल पाथ है, ट्रैजेक्ट्री है. सिंपली ट्रांसफरिंग दैट फ्रेमवर्क टू अदर कंट्री, यूएस में ये सक्सेसफुल हुआ, इंडिया को चेप दो, यूएस में सक्सेसफुल हुआ, चाइना को चेप दो, इट विल नॉट वर्क. बाय? बिकॉज देन देर आर कंट्रीज इन विच देर इज लेस स्टार्क रेसिज्म. अमेरिका में बहुत रेसिज्म है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे ईस्टर्न यूरोप जहाँ पर रेसिज्म उतना इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वाइट माइग्रेंट लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है. वहाँ ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, वहाँ वाइट माइग्रेंट लेबर का एक्सप्लॉइटेशन है. और ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर बहुत अमेरिका से बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, जैसे साउथ अफ्रीका की बात कर लें. तो अमेरिका का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन ईस्टर्न यूरोप एंड साउथ अफ्रीका. इफ़ यू आर डूइंग इट, यू आर स्टूपिड अकॉर्डिंग टू द ऑथर. एंड दिस इज़ नॉट बीइंग ऑब्सोलीट, दिस इज़ मिसगाइडेड इनोवेशन. यू आर डूइंग इनोवेशन, समथिंग न्यू, बट यू आर मिसगाइडेड. इट इज़ कंसेप्चुअली एंड सोशली रिस्की. अभी बहुत रिक्स है भाई, टू मच ऑफ रिक्स हैपनिंग हियर. स्टूपिडिटी हैज़ टू फीचर्स दैट मेक इट पर्टिकुलरली डेंजरस व्हेन कंपेयर्ड विद अदर वाइसेस. दुनिया की बाकी बुराइयों से ज़्यादा बड़ी बुराई है स्टूपिडिटी. पहला, ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है कि आप धूम्रपान करते हैं और आप एकदम चेन स्मोकर हैं. ये कैरेक्टर फ्लॉ हो सकता है इंडिविजुअल का. स्टूपिडिटी इंडिविजुअल के नहीं होती है. स्टूपिडिटी पूरे के पूरे ग्रुप और ट्रेडिशन की प्रॉपर्टी है. तो एकदम कहते हैं ना कि वो हाले गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं. क्या बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है. सो if you have ullu sitting everywhere, then it is very dangerous, because stupidity is not about you being ullu again, alone. Okay, after all, we get most of our concepts and our mental tools from where? Samaj. So stupidity is a samajik problem. Okay, suppose the problem with Haig the marshal, okay, had been laziness. अगर ये आदमी लेजी होता, कोई टेंशन नहीं थी, हम एनर्जेटिक जनरल ले आते, उसको रिप्लेस कर देते. लेकिन हेग भाई साहब ने एकदम अपनी हालत ख़राब कर ली है. टायर्ड टू द बोन. वर्क हिमसेल्फ टू द बोन मीन्स वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, वर्किंग वेरी हार्ड विद इन द इंटेलेक्चुअल प्रिजन ऑफ द 19th सेंचुरी मिलिट्री ट्रेडिशन. और एकदम वो कन्विंस्ड है अपने इंटेलेक्चुअल प्रिजन में रह के कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है. अभी इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये करने के लिए आपको नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पूरा लाना पड़ेगा. एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, मिलिट्री प्राइड होनी चाहिए. एक बार स्टूपिडिटी ने घर बना लिया किसी ग्रुप और सोसाइटी में, फिर उसके बाद उसको हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. स्टूपिडिटी इज इक्वल टू डॉन. यू हैव टू इन्वेंट इट, डिस्ट्रीब्यूट इट एंड नॉर्मलाइज न्यू कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस इज टफ वर्क. सो इफ अ सोसाइटी इज स्टूपिड, इट्स स्टूपिड, यू कैन करेक्ट देम. Which reminds me of a cliched sentence in English that the majority the majority often consists of fools, or when we talk about the masses, the M is usually silent. Okay. Second, stupidity begets more stupidity. Beget is reproduce or cause. तो stupidity को जन्म देती है. क्यों? क्योंकि उसमें एक deep confusion है. Profound is deep, ambiguity is confusion. If stupidity is a matter of the wrong tools, whether an action is stupid will depend on what the job is. अगर टूल की गलती है तो फिर कितना एक्शन हमारा स्टूपिड था ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम काम क्या कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हथौड़ा है.
हथौड़ा कील ठोकने के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन मम्मी अगर हथौड़े से मारने लग जाए, चप्पल को हथौड़े से रिप्लेस कर दे, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, फिर हम मीम्स बनाने के लिए बचेंगे ही नहीं. सो इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर डूइंग. A hammer is perfect for some tasks and wrong for others. Take politics. Stupidity is particularly catching in politics. A stupid slogan chimes with a stupid voter. Chimes with मतलब it relates to you. Okay? कोई भी political slogan उठा लीजिए जो आपके दिल को छूता है और आपको लगता है भाई साहब यही है slogan of the year. It mirrors the way they see the world. जब आप किसी स्लोगन को अपना बना लेते हैं तो वो ये दिखाता है कि आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं. Okay? The result is that stupidity can ironically be extremely effective in the right environment. अभी सही जगह पर राइट एनवायरनमेंट में स्टूपिडिटी बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि सभी लोगों को वो स्लोगन पसंद आ जाएगा और सब लोगों को मज़ा आ जाएगा और जिसने भी वो स्लोगन बनाया है वो जीत सकता है. और हम जिस इनकैपेसिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो इनकैपेसिटी काम पे भी आ जाएगी. It is important, vital is necessary to separate this point from familiar and condescending claims. Condescending is when you put down someone as inferior. अरे तू बकवास है. This is a condescending attitude about how dumb or uneducated the other side are. तो ये ज़रूरी है कि हम इस बात को डिस्टिंग्विश करें कि हम अक्सर लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को या डम लोगों को स्टूपिड समझते हैं और उनको दूसरे किनारे कर देते हैं. ये बहुत अलग तरीके का डमनेस है और स्टूपिड लोगों का डमनेस बहुत अलग है, क्योंकि स्टूपिड लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हो सकते हैं. स्टूपिडिटी इज़ कंपैटिबल विद हाई एजुकेशनल अचीवमेंट. भाई साहब IIM अहमदाबाद चले जाइएगा, गरबा खेल लीजिएगा, लेकिन स्टूपिडिटी घर कर गई तो कर गई. अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े बी स्कूल्स और बड़े बड़े IITs और बड़े बड़े साइंटिस्ट फिर कभी कभी ऐसी अजीब बातें कर देते कि आपको लगता है यार ये आदमी इतना पढ़ा लिखा हो के ऐसी बातें कर रहा है. तो इसीलिए क्योंकि हाई एजुकेशनल अचीवमेंट का स्टूपिडिटी से कोई लेना देना नहीं है. इट इज़ मोर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलिटिकल कल्चर. आपका कल्चर कैसा है उस पर ये बात ज़्यादा डिपेंडेंट है रादर दैन इंडिविजुअली आप कैसे हैं. और इसीलिए उसको टैकल करने के लिए भी कल्चरल लेवल पे जाना पड़ेगा. इंडिविजुअल लेवल पे कोई खास काम होने नहीं वाला है. वी कैन नाउ एक्सप्लेन माई स्टूपिडिटी. सो डोमेन स्पेसिफिक, तो अभी हमको समझ आ गया है कि डोमेन स्पेसिफिक क्यों होती है स्टूपिडिटी. वाई समवन कैन बी सो स्मार्ट इन वन एरिया एंड, है ना. तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छे ऑफिस में काम करते हैं और हमारा एकदम बढ़िया सा जॉब है इन्फोसिस में, लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं कि मैम मैं कैट में परसों नाइट ड्रेस पहन के चला जाऊँ. तो आई होप दैट शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी राइट नाउ. या सो यू कैन बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड in another area. The relevant concepts are domain specific. Furthermore, we can see that there will be many cases that are not fully fledged stupidity but that mimic its effects. कई बार फुल फ्लेजेड स्टूपिडिटी नहीं होती है बट ऐसे आसपास वालों का असर आ जाता है. ठीक है. इमेजिन समवन हु हैड बीन ब्लाइंड टू ऑल एविडेंस दैट दे वर बीइंग चीटेड. तुम लोगों की बात हो रही है, तुम्हारे पास दुनिया का सारा सबूत है कि तुम्हारे साथ कोई चीट कर रहा है, लेकिन तुम चीटिंग होने देते हो और फिर उसके बाद तुम कहते हो हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड. मतलब मैंने कैसे, यार मैं देख ही नहीं पाई. भाई साहब तुम्हें दिख रहा था, तुमने आंखें बंद कर ली थी. हियर द प्रॉब्लम इज़ नॉट प्योर स्टूपिडिटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ चीट इज़ कॉमन इनफ. सबको पता है चीटिंग करते हैं लोग. वॉट वी हैव हियर इज़ रादर समवन एक्टिंग एज इफ दे वर स्टूपिड. यू चोज to ignore those signs, to ignore that evidence. You chose to be stupid, okay? You chose to be credulous. अभी रूट वर्ड आता है credulous का, cred plus us. It's not just that they failed to apply the concept of betrayal, but that they literally did not think of it or you did not want to think of it. It was effectively offline due to emotional and other pressures. यार अकेले रह जाऊँगा उससे अच्छा है कि ठीक है, नहीं कर रही होगी चीटिंग, कोई बात नहीं, फ़ोन बिजी आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा. या आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिट्रे योर पार्टनर्स और whatever, just trying to make you smile a little. In this kind of case, agents possess the necessary intellectual tools but unintentionally lock them away. अभी एजेंट यानी आपके पास सारा नेसेसरी इंटेलेक्चुअल टूल है, आपको सब पता है चीटिंग वीटिंग सब के बारे में, लेकिन आप अनइंटेंशनली ताला लगा देते हैं. आप नहीं देखना चाहते हैं. यू रैशनलाइजिंग इट, है ना. अकेले रहने से अच्छा है कि ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. दिस मेक्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट विद डमनेस. अभी ये डमनेस नहीं है. वी कैन मेक आवर सेल्फ स्टूपिड बट वी डोंट मेक आवर सेल्फ डम. योर सबकॉन्शियस माइंड न्यू एवरीथिंग, सो यू आर नॉट डम, बट या यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, सो यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्टूपिड. हाँ, एकदम लव इज़ ब्लाइंड, आई कम्प्लीटली एग्री. सो स्टूपिडिटी इज़ वेरी टफ टू फिक्स. दिस इज़ एग्जैसर्बेटेड. पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी बताओ. एग्जैसर्बेटेड मीन्स to spoil further. By the way, it dovetails with other vices. Dovetails is joining, okay? Stubbornness यानी जिद्दीपना stops me from revisiting my concepts even as they fail me. अभी मैं जिद्दी इंसान हूँ,
एक बार चीटिंग हो गया मेरे साथ, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं ज़िद्दी हूँ, मैं रिविज़िट नहीं करूँगा, मैं रिविज़न करूँगा ही नहीं, मैं बार बार उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं बातों पर वापस जाऊँगा दैट हैव फेल्ड मी. बट वंस वी अंडरस्टैंड स्टूपिडिटीज़ नेचर, थिंग्स आर अ लिटिल ब्राइटर देन दे माइट सीम. एक बार आप ये समझ लीजिएगा, मतलब आज का आर्टिकल कर लीजिएगा, तो फिर चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाएंगे. टू व्यू पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एज प्राइमरीली सिनिकल ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू मेकियावेलियन मॉन्स्टर्स. अगर आप पॉलिटिकल ओपोनेंट को, अपने राजनीतिक विद्रोही को प्राइमरीली सिनिकल निगाहों से देखते हैं कि ये तो है ही डैश, तो फिर आप बन जाते हैं मेकियावेलियन मॉन्स्टर्स. अभी हमने माइथोलॉजी का क्लास कर लिया, बताइए मेकियावेलियन क्या था? निकोलो मैकियावेली के नाम से आया था. मेकियावेलियन मॉन्स्टर इज अ कनिंग मॉन्स्टर, अ वेरी कनाइविंग, शातिर, लीविंग नो स्पेस फॉर एनीथिंग बट अ जीरो सम बैटल. जीरो सम बैटल का मतलब है जहाँ ओवरऑल नेट प्रॉफिट कुछ नहीं है, किसी का फ़ायदा नहीं होता, जिसमें फॉर डोमिनेशन. तो हर कोई डोमिनेट करने के लिए लड़ रहा है और लोग मॉन्स्टर बन के रह जाते हैं. टू व्यू पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एज डम्ब इज़ टू सजेस्ट एन इररिपेरेबल फ्लॉ. अगर आपको लगता है कि सामने वाला तो है ही डम, तो इसका मतलब आप बिलीव करते हैं दैट देयर इज समथिंग विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड एनी मोर. वन दैट इन अ डीपली हायरार्कियल सोसाइटी वी ऑफन प्रोजेक्ट ऑन टू दोज विदाउट द राइट एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स. तो अभी जब हमको सामने वाला डम लगता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी डिग्री की बातें करने लगते हैं, हम उसका एजुकेशन ढूंढने लगते हैं, और अगर हमें वो नहीं मिले तो हम कहते हैं कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए ये ऐसा है. बोथ मूव्स ऑफर अ सर्टन फॉल्स रीअश्योरेंस. दोनों ही बातें खराब हैं, सिनिकल होकर देखना भी और सामने वाले को डम समझना भी. With a bit of reflection, we can be fairly sure that we are not cynical, and with the right credentials, we can prove that we are not dumb. तो भैया स्कूल कॉलेज बढ़िया गए हैं तो डम तो नहीं है, ठीक से सोचेंगे तो देखेंगे हम सिनिकल भी नहीं हैं. बट वी माइट वेल बी कॉट इन द नेट ऑफ स्टूपिडिटी. लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम स्टूपिडली बिहेव कर रहे हैं. इफ़ हिस्ट्री इज़ एनी थिंग टू गो बाय, अ फ्यू 100 years फ्रॉम नाउ, अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा चलें तो आज से कुछ 100-200 साल बाद हमारे आने वाले डिसेंडेंट्स को कम से कम एक पार्ट तो मिल ही जाएगा कंटेम्प्रेरी मोरालिटी का, यानी आज के मोरालिटी का, जो कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा. अनइंटेलिजिबल इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन और यू कैन नॉट फाइंड अ रीजन टू. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग विच यूज टू हैपन इन एन एरा लॉन्ग अगो. फॉर एग्जाम्पल सती की बात करते हैं, तो आज के लोगों को क्या लगता है कि यार सती कितनी ख़राब चीज़ थी या कितनी स्टूपिड चीज़ थी. कोई कैसे बोल सकता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ को भी मर जाना चाहिए. ये आपको बिल्कुल इलॉजिकल लगता होगा, माफ़ करिएगा, लेकिन आप आज जो चीज़ें करते हैं, आपके आने वाले लोगों को 200 साल बाद आपकी आज की चीज़ें इलॉजिकल लगेगी. फॉर एग्जाम्पल 200 years फ्रॉम नाउ पीपल मे फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज completely unintelligible. More people are choosing not to get married these days. Maybe 200 years from now people will think अरे कौन शादी करता है रे, किसको ज़रूरत है, ट्राइबल्स एक्सेट्रा में नहीं होती थी. सो दे विल फाइंड आर कंटेम्प्रेरी मोरालिटी अनइंटेलिजिबल. कुछ ना कुछ उन्हें मिल ही जाएगा और फिर वो क्या सोचेंगे, हाउ कुड डिसेंट पीपल एवर हैव बिलीव दैट इफ़ दे आर नॉट टू कंडेम अस एज ईविल. और उन्होंने हमें अगर ईविल नहीं भी बोला तो फिर वो हमको क्या बोलेंगे कि हम सब कैसे हैं, स्टूपिड. All right. I thoroughly enjoyed this article. I hope you did as well. Attraction से दूर रहो, blah blah, hormones. Okay, you guys need to control yourself. This is not a class. This is a public platform. If you are a 2022 student, an 18-month plan is a fantastic plan for you. You will cover your OMETs and CAT and everything with us. If you're a 23 guy, then probably 24 months. So this is an ideal plan. You can use my code Karishma Live and grab great discounts. If you're a person who wants all the benefits of Plus and 1:1 mentoring, discussion, doubt solving, and you need more personal attention, then you can opt for an iconic plan. The discount coupon remains the same. It will still get you a discount. All right. सोर्स क्या है, तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप ये आर्टिकल को तसल्ली से पढ़िएगा. इट्स फ्रॉम psyche.co. टेक अ स्क्रीनशॉट वेरी क्विकली. Why some of the smartest people can be so very stupid. ठीक है, एकदम ठीक. तो ये पढ़ेंगे. और होमवर्क ये भी है, यू विल ट्राई एंड राइट द सेंट्रल आइडिया इन 50 words. Okay, do that as a little homework and also ponder over the tone and we'll discuss it in the classes. All right. If you're a 21 student, I have 2 free classes coming up soon after you are done with the exam, because I don't want you to waste any time, because 5th of December is IIFT, so we'll do 29th or 30th को special class. Lastly, ये वाला हमारा session will now happen, episode 3 will now happen on 1st of December. ध्यान से देख लो, फिर बाद में बोलोगे कब है क्या है.
सो 1 दिसंबर को करेंगे, वेंसडे को 5 बजे। इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो बैंको शोज फॉलो करो, वहाँ से ग्रामर वोकैब इम्प्रूव होएगी। और बस आज के लिए इतना ही। मज़ा आया तो लाइक करने का, शेयर करने का, सबको बताने का और हेल्प करने का, ठीक है। सो आई विल सी यू 6:30 इज़ योर क्लास, तो छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। 6:15 इज़ योर क्लास, सो 45 मिनट इज़ योर ब्रेक। आफ्टर 45 minutes आई विल सी यू इन द प्लस क्लास। टिल देन